Namaskar, good evening. I hope all of you are safe, all your families are healthy, all your loved ones are healthy. Every one of us is trying to maintain social distancing, and also importantly, everyone is trying as much to help as possible. आज 11 on 10 के सीरीज के 5वें एपिसोड सॉरी आज 11 on 10 सीरीज के जो 5वें एपिसोड के हमारे गेस्ट हैं वो हैं विराट कोहली. Now for me, he is the most followed and loved personality in our country because of the sports he plays, because of the way he plays, because of the way he bats, because of his talent, because of his attitude and aggression on the pitch, because of being a good example. Everyone in the country wants to know about him, wants to know as much as possible about him, and that's why he is so much loved and followed. Now why I'm saying you this is because I want to excuse myself from going to the whole page of his achievements. Talking about achievements, there is no sporting award in our country which he hasn't won. Man of the matches, man of the series, tournaments, being a good example, batting records, already broken so many, makes his own. To be honest, he is on track of breaking almost all the records, all the batting records that ever was. Now this is why he's so much loved and everyone follows him. And of course, I too love him for these reasons, but I will give you two reasons why I'm a fan. I'm a fan because growing up we were all Sachin Tendulkar fan, all of us. And then when he retired, at the same time, I had my own profession, so we stopped watching cricket. I completely stopped watching cricket. I used to listen to news and keep a track of what the Indian team is doing, but I didn't watch cricket. And then we heard about Virat Kohli 10, 11, 12 years back. He did well here and there, and I thought, new kid doing well. And then 100, and then again 100, and then again 100, again wins a game, again. And that is the reason why I got back to cricket. I just wanted to find out who this guy is, and when I started watching him, and again, and again, and again, with his talent and with the way he plays, he brought me back to cricket. Now, even with my busy schedule, I take out time to watch him. And the second reason why I'm a fan is, this guy is unbelievable when it comes to giving his best. I know him personally and I call him a friend. There is no stone unturned when it comes to giving his best, be it his diet, his recovery, or giving everything that he has on the pitch. And that's why I'm his fan. So today on 11 on 10, I've come with 10 questions that I wanted to ask. I hope with these answers the fans can learn a little bit more about him, because you guys know almost everything about him. And more importantly, I hope the captain of the Indian cricket team enjoys his time and loves the question. So without further ado, वक्त ज़ाया नहीं करते हुए मैं ट्राई करता हूँ कप्तान साहब को ढूंढने की और उनको लाइव में लाने की. Hello, sir. Champ, how are you? I'm good. How are you? I'm good, man. I'm good. Good to First see of you. all, Champ, yeah, same here. Thank you so much for doing this, yeah. No, it's a pleasure. It's a pleasure. We keep talking and keep fooling around. So why not have some fun with our fans? Yeah, exactly. So, before we start, आपने देखा बचपन में जब वो मम्मियाँ नहा धो के तैयार करती थी, बाल एक तरफ और सिर्फ, और चलो जाओ तेल लगाकर. तो आज मैं तैयार हो रहा था, मेरी बीवी कहती खड़ी हो, मैं खड़ा. तो इसलिए ऐसा है. A lot of people ask me what's the reason of my hairstyle. This is the reason. डीडीसी में पास था या टिकट नहीं लेना है, बाद में देखी जाएगी अगर पकड़े गए तो. नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया. हमारी शक्ल वैसी नहीं थी कि हमें कोई देख के सीरियसली लेता ही नहीं था. हम स्टाफ बोलते थे तो पकड़ लेते थे.
हमें ऐसे, अब वो पर्सनालिटी होनी चाहिए ना, पर्सनालिटी होनी चाहिए कि बोले हाँ क्या भी है, स्टाफ है। स्टाफ है। वो है, किसका स्टाफ है? मेरे एक बार बोला मैंने, मैं बस से निकल गया वो उसने मेरे को ऐसे सवाल पूछा कि साला उसने बिलीव ही नहीं किया मुझे। मैं उतर गया बस से, मैं कहा भाई भागो यहाँ से। तो मैं कभी नहीं यूज कर पाया, नहीं, मैंने देखा बहुत है होते हुए। उन लड़कों की अलग ही और कॉन्फिडेंस होता था यार, उनसे वापस हाँ, काउंटर सवाल नहीं होता ना, इसलिए वो चले जाते थे। मैं करता था, मैं डीडीसी पे टिकट लेता था। हाँ तो उस टाइम पे अगर पकड़े गए तो 20 रुपए फाइन था। तो मेरे घर से मुझे मिलते थे 20 रुपए। हाँ तो मैं सोचता था जब पकड़े जाऊंगा तो 20 रुपए दे दूंगा, या तो हाँ भागूंगा या 20 रुपए दे दूंगा। बहुत दिन चलता गया, एक बार पकड़ा गया, 20 रुपए दे दिए। फिर उन्होंने क्या किया, बढ़ा के कर दिया 50 रुपए। अच्छा। मैंने कहा अब तो मुश्किल हो गया, अब टिकट लेनी पड़ेगी। तो यार वो टाइम था यार। मुझे एक बार याद है, ये बस वाला इंसिडेंट होता था हमारी लो जी चहल यहाँ भी आ गए, हेलो भैया फ्रॉम होम, ये नहीं मानेगा। अबे भाई मान जा भाई, तुझे हर जगह घुसना है, कोई बात कर रहा हो बीच में इसका कमेंट जरूर आएगा। हद्दी हो गई भाई, ये जिस दिन ये चीजें नॉर्मल हुई ना, ये भागता ही दिखेगा रोडों पे, इसने घर नहीं आना वापस। ये भागेगा सिर्फ टिकटॉक ऑन करके, अरे भागेगा मैंने चारों तरफ। मैंने इसका एक वीडियो देखा, बिकॉज आई वाज कॉलिंग हिम टू गेट सम स्टफ अबाउट यू। मैंने इसका वीडियो देखा, कह हाँ, रहा है कि मैं घर में नहीं आऊंगा, मैं होटल में रहूंगा। अब जब मैं खुलेगा मैं बाहर ही बाहर रहूंगा, मैं घर में नहीं आऊंगा। इसका काम हो गया है, इसके तारे वारे हिल गई है कोई अंदर की, शॉर्ट सर्किट हुआ है इसको। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी सोसाइटी जो थी जहाँ रहते थे हम, सामने उसके छबील लगती थी छबील गुरपुरब के मतलब, टाइम। हाँ छबील मतलब इट्स अ गैदरिंग वेयर एवरीवन कम्स टुगेदर, देयर नहीं आर नहीं लॉट ऑफ नहीं थिंग्स। नहीं नहीं नहीं, वो गुरपुरब के टाइम पे बेसिकली प्रसाद बनता है, हाँ और रूह अफ़ज़ा वाला वो दूध के साथ मिला के वो ड्रिंक बनती है। हाँ, ठीक है, और सबको रो छोले, रो के पिलाते हैं। हाँ हाँ, हाँ वो छोले पूड़ी हाँ हलवा वाला होता है और रोड पे मिल रहा हाँ होता है। तो हाँ बेचारे जो साइकिल पे जा रहे होते हैं, गर्मी है, रिक्शा वाले हैं, उनको सबको फीड किया जाता है लंगर टाइप। हाँ हाँ तो उसमें होता क्या था, बसें निकलती हैं, तो बसें भी धीरे होती हैं यार, प्यास लगी होती है लोगों को, तो मैं वहां पे छबील पिलाता था, मुझे बहुत मजा आता था। तो हाँ छबील भर के मैं, अब आपने ट्रे पकड़ी हुई है, उसमें ग्लास है, चढ़ गए आप। एक बार क्या हुआ, साली बस में भीड़ इतनी थी, अब मैंने पहले, और मैंने दिक्कत क्या हुई, मैंने गलती क्या कर दी, पहले मैंने ड्राइवर को पिला दिया। अब जैसे हाँ ही उसने पिया, उसने कहा बाहर में जाए सारे, उसने अपना काम शुरू कर दिया, उसने बस चलानी शुरू कर दी। अब मैं छबील पिलाते पिलाते उसने मुझे 4 स्टॉप आगे छोड़ा, 3 किलोमीटर आगे वहां से साला भागते आ रहा हूँ मैं। क्या जग खाली हो गए मेरे, किसी ने गिलास नहीं दिए, ट्रे इधर गिलास उधर गिरे। बड़े काम, बसों में बड़े काम हुए मेरे साथ। मैं भी बस में बहुत हांडा हूँ यार। मैं भी, डैड साइकिल में छोड़ते थे बस स्टॉप पे, हाँ और वहां से अपना बस पकड़ा। हाँ और मैं रहता था दिल्ली कैंट में, अच्छा, जहाँ पर नेहरा पाजी का घर है, हाँ 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 हाँ, बहुत पास सदर बाजार के। सदर बाजार ना, तो हाँ। हाँ, वहां से धौलका गया, धौलका वहां से गाड़ी चेंज की, मुनीरका पकड़ी और हम्म, चला गया छत्रसाल स्टेडियम। अच्छा। प्रैक्टिस करके फिर स्कूल गया, फिर स्कूल से वापस आया। मैंने ये बड़े वो बहुत वो बस में मजा ही हांडा हूँ, अलग था, से बहुत वो बहुत मजा मजे अलग करते था। थे। हम दोनों 90 के दशक में बड़े हुए हैं, हम्म एंड ऑफ कोर्स मिडिल क्लास फैमिली अगेन। हम्म सो जो चीजें मुझे याद है वो है देख बाय देख थर्सडे को, फॉलोड बाय जबान संभाल के, एंड देन अलिफ लैला, एंड देन चंद्रकांता, एंड देन नया नुक्कड़ ट्यूसडे को। विक्रम बेताल सो बेटे। विक्रम बेताल, ओहो तू फिर बोला, मैं फिर उड़ा। या मेरे को लगता था ये हर दिन क्यों बोलता है ये, आज तो यार कुछ बोल वो जो, सीख जा। ये मेरे को बहुत याद आता है टाइम यार, अनबिलीवेबल। वो 90s का टाइम ना, नटराज पेंसिल की एड, मतलब ये सब वापस नहीं आ सकता। वो फैंटम सिगरेट हमदर्द का टॉनिक खानी सिनकारा, दुकान पे जाके, हैं। हमदर्द का टॉनिक सिनकारा। किस्मी बार खरीद फैंटम की सिगरेटें खानी, ये सब नहीं, ये सब वापस नहीं आ सकता। सिप्सी पीनी 1-1 रुपए वाली, संडे को जाते थे हम क्रिकेट खेलते, 25-30 सिप्सी लेके आनी हमने, ठंडी ठंडी। क्रिकेट खेलने के बाद वहाँ ग्राउंड पे बैठ के सिप्सी पियो, फिर एकेडमी के बाद छोले भटूरे खाओ निकल के। अरे यार ओह। वो वक्त ही अलग था, कमाल। तो ऐसी कौन सी चीज है उस 90s की, छोटी भी चीज होती जो कि आपकी अब लाइफ में भी आप उसको रखते हो? Some small thing that you picked up as a middle class family, which you still have it in you, because now the life is completely different from what हम्म Virat Kohli was then to now, हम्म where he can get whatever he wants. हम्म। What is the one thing that has stayed with you, or two things, or many things that have stayed with you as a? यार आई थिंक वो एक कहावत होती है ना, यू शुड नेवर फॉरगेट वेयर यू केम फ्रॉम। तो Yeah. मेरे जो बचपन निकला है एक एक सोसाइटी में रहने का, वेस्ट
पंजाबी बाग में, प्रॉपर टिपिकल वेस्ट दिल्ली माहौल में एक रहने का। वहां से एक ही चीज मुझे सीखने को मिली कि जब भी मैं किसी बंदे से मिलता हूँ ना वहां के, आई स्पीक द सेम लैंग्वेज आई स्पोक टू देम इन दैट टाइम, एंड दैट टू मी इज द बिगेस्ट मार्कर दैट यू आर नेवर अवे फ्रॉम हु यू आर। अभी सडनली अगर कोई मेरे को बचपन का मेरा कोई जानने वाला मिल जाए, मेरा एक बचपन का दोस्त था, राइट, तो मैं उससे अभी भी जब बात करता हूँ या मिलता हूँ ना, मैं उससे ऐसे मिलता हूँ जैसे अभी क्रिकेट खेल के आए और अभी घर गए और ये अगले दिन मिल रहे हैं। तो मैं ऐसे नहीं बोलता वो ब्रो हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ, हाउ यू डू, मैं ऐसे बात नहीं करता उससे। नो आई डोंट, मुझे पता है, हाँ मुझे पता है। आई डोंट सडनली बिकम पॉश विद हिम, बिकॉज टू मी लिविंग लाइफ खुल के इज द ओनली वे टू लिव। और आपको जो अंदर से फील हो रहा है ना कि यार मुझे लोगों से ऐसे इंटरेक्ट करना है, आप वैसे इंटरेक्ट करो, वो एक वो I don't believe in having a layer on top of your behavior to feel very sophisticated या come across very balanced. वो अपने आप हो जाता है where you are in a place to talk about something which is serious. It means something. Obviously you won't talk like, भाई बताऊं तेरे को क्या हो गया, पता है फिर तेरे को ना ऐसे करना चाहिए. Obviously you will have you'll be more articulate. You'll explain it well. But जहाँ पे you are yourself, you should be yourself. और मैं सबसे ऐसे बात करता हूँ, like जिससे भी मैं क्लोज हूँ, हम बता नहीं सकते हम क्या बातें करते हैं, लेकिन आपको पता ही है। No, I'll tell you why मैं ये सवाल लेके आया, because 2 दिन पहले क्या हुआ कि हमारा टूथपेस्ट खत्म हो गया। तो मेरे हिसाब से खत्म हो गया, तो मैंने तो फेंकने वाला था। तो मेरी बीवी कहती इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। उसने क्या फोल्ड किया, उसको पूरा दबाया। कि how it was in my house कि पहले पूरा वो निचोड़ना है, उसको फोल्ड करना है, और अगर तंगी चल रही है तो काटना भी है। बिल्कुल सर, ये I just read 2 days back कि फेंकने की बात चांस ही नहीं है। फेंक कैसे सकते हो आप? हम आज तक हम वो शावर जेल में पानी इतनी सी रह जाती है जो नीचे, उसमें हम पहले पानी डाल के घोलते हैं उसका, फिर लिक्विड डालते हैं। भाई साहब अभी तो बिल्कुल साफ दिखना चाहिए अंदर से, जो पानी के लिए यूज करने टाइप हो जाए ना, तब तक नहीं फेंकते हम। सेम चीज है, मेरे को रुका गया। अरे वो डस्टबिन में फेंक दिया था मैंने, वो पेस्ट निकाला, मैडम ने बोला भाई इसको निचोड़ो, इसमें बहुत बचा है अभी भी। एंड देन यू रियलाइज कि दिस वाज नॉर्मल इन माय हाउस, दिस इज हाउ इट वाज। यार हम नाली से इसलिए मैं सवाल लेके आया था। पॉलीथिन एग्जैक्टली, आप कह रहे हो टूथपेस्ट निकालनी नहीं हमको। हम नाली से बॉल निकाल लेते, मैंने भी, या फिर वो 2 डंडियों मैंने से, बहुत नाली से बॉल निकाला है। हाँ, 2 डंडियों से। द बेस्ट होता था 2 होते थे। ये कहता डाल दे। अबे नहीं यार, अबे डाल दे, कोई नहीं देख रहा, मैं किसी को बताऊंगा, डाल दे डाल के निकाल। बहुत बहुत मजा आता था सोसाइटी में ना। और क्या होता है कि इतनी सारी स्किल्स आप सीख लेते हो, एक माहौल ऐसा होता है। क्रिकेट आप खेल रहे हो या कोई भी, मेरा एक्चुअली जो बचपन का दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त जो मेरा था उस टाइम पे, अभी भी मैं उससे टच में हूँ, वो बैडमिंटन खेलता था, वो स्टेट चैंपियन था। तो हम कोर्ट कैसे बनाते थे, वो स्ट्रिप्स आती थी कपड़े की, रोल आते थे बड़े बड़े, उसको लेके आना उसमें वो हैलोजन लैंप्स लगाना, 2 पोल बनवा के लाने, वेल्डिंग वाले से वेल्डिंग करा के नेट लाना। तो ये जो एक स्किल होता है ना कि आपने कुछ आपके पास नहीं है, आपने कुछ क्रिएट करना है आपके आसपास के रिसोर्सेज से। तो वो पैसे जोड़ने पहले, ये सामान खरीदना, फिर उसका कोड, और दुआ भी करना कि हवा ना आए, आज हवा नहीं चलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट था। और जिस दिन हवा नहीं चल रही तो 12:30-1 बजे तक बैडमिंटन हो रही है, और लगे हुए साइड में माहौल होता था, सारे आ जाते थे नीचे, क्राउड भी हो जाती है और मजा आ रहा है, मजा चल रहा है। सो दोज वर द डेज, लाइक वो चीजें बहुत मुझे याद आती हैं। बैल्कनी में किसी की बॉल चली गई, उस घर में कोई रहता नहीं, तो आप पूछोगे थोड़ा ना जाके, पाइप से चढ़ गए 2-2 फ्लोर, कोई डर नहीं होता था, पाइप से चढ़ गए 2nd फ्लोर की बैल्कनी में, वहां से बॉल लेके आ गए। ये सब चीजें बहुत मेरे को, दोज थिंग्स विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी वेरी वेरी डियर टू मी। हाँ, तो मेरा वो केस था। उसके कोई बाद नहीं आता, ये सही बात है, कोई नहीं आता, कोई नहीं। और उस समय फोन भी नहीं था ना। हाँ बोलो। मेरे को 50 रुपए दिए। अब मैं शादी वगैरह में जाते, मैं देखता था यार लोग ना बड़े नोट उड़ा के नाचते हैं, बड़ा मजा आ रहा है लोगों को। तो कोई घर पे आया होता, मुझे 50 रुपए दिए, ये सामान लेके आ जा। मुझे पता नहीं क्या कीड़ा चढ़ा, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो गई 50 रुपए का नोट देख के। मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, घर से नीचे जाके, सीढ़ियों से नीचे जाके वो मैंने उड़ाए, उसके बड़े सारे टुकड़े उड़े, मैं उसके नीचे नाच के आ गया। मैं सामान ही नहीं लिया। अब वापस गया, बताओ कैसे, जो मुझे मार पड़ी है घर पे। बस ये पता है मुझे लगता है चैंप, अगर हमने वो वीडियो दिखा दिए ना, अगर होते जिस तरह हमें पेला गया था,
आजकल के बच्चे तो डर के मारे उठेंगे नहीं। नहीं, चांस ही नहीं है। मेरी बहन ने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। मैं ना तू करके बात करता था। अच्छा, मतलब गुस्से ऐसी में या ऐसी? नहीं, ऐसी मेरे को आदत थी तू करके हाँ। बात। एक दिन पता नहीं क्या हो गया, दीदी को पता नहीं क्या गुस्सा चढ़ गया, भाई साहब ऐसा मारा मुझे, मैं त निकलना ही बंद हो गया मुंह से मेरे, आ ही निकलता था आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो। उफ, Yeah, the day and that's doesn't what end before that. Chahal told me, and of course I have to take his name because he's here, that वो उनके वर्ड्स में वो आगे से इतना कुछ करते हैं कि हमें अपने आप फॉलो करने का मन करता है। और विराट भाई को मैंने कभी गुस्सा होते देखा नहीं है, वो कभी मैच हारने के बाद चिल्लाते नहीं है, वो सिर्फ एक चीज बोलते हैं, अपना बेस्ट दो। और फिर मैंने उनको और खरोदा कि कभी तो गाली देते होंगे, कभी चीखते होंगे, कहते नहीं, कभी नहीं चीखते हैं। और उसने एक और अच्छी बात बोली कि विराट कोहली के पास आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सब लेके जाते हैं। हाउ ट्रू इज इट? सी, ये चीज over a period of time आप realize करते हो, and I have always said this, because of I wasn't this person always. Yeah. I truly believe that everyone has a giving, a compassionate side to them, but there always is an individual that comes in your life who brings it out. And True. for me, meeting Anushka was that Yeah. moment where, you know, I started to realize that this is not all about me. True. Life is to look at another person and live like that. So then you become confident of who you are, and you become confident of giving, of being compassionate. So ye mindset mujhe, after I met Anushka, she made me realize that, you know, the position that I'm in, it is so important for me to try and change things around me for the better. तो ये सब चीजें उसके बाद से मुझे रियलाइज होनी शुरू हुई. And these things for me, records, numbers, ये वो, so I do not care about them. जो हो रहा है, जो चल रहा है, ठीक है. To make my team win, I will try and do anything possible. In that process, whatever happens, if people love seeing numbers, you know, up to them. But you know, it's never about the numbers. It's about what you are doing, the mindset you take on the field, the effort you put. More than that, what makes me feel truly, you know, justified to be in the position that I am is being able to impact another person in a positive manner. अगर कोई मुझे उठ के कल को ये बोले कि आपके बात करने की वजह से, या आपने जो मेरे को बताया उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली और ट्रूली मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, nothing pleases me more than that. If I can share my mindset with someone else and see them succeed, there is no better feeling. And that's something that I think everyone should strive to do. तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है, if you know I am in a position to do it, I will always and always do it. That's really sweet. That's really sweet. So हमारे 5 सवाल खत्म हो गए. That defined your childhood. या जो बचपन का गाना याद हो आपका? बचपन का गाना? वाओ. पंजाबी गाना, of course. कोई भी दोस्त, कोई भी. काला चश्मा. वो गाना मुझे बहुत पसंद है गाना. I could dance to that song at a party, at a wedding. I could listen to that before a game. I could that chilling at home. किसी फेस्टिवल लगा दो, कुछ भी कर लो, वो all purpose song था. I used to love it. True. I used to love it. True. Yeah. यार विराट, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार. 5 सवाल हुए हैं और 58 मिनट हो गए. तो क्या Can I request you, we can take a 5-minute break and you can call your mom and I can get back to you in 5 minutes, please? नहीं, she understands. She'll sleep by around 9, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. You sure? या चालू रखो आप, no worries. Okay, ठीक है. तो अभी आपने बात की अपनी धर्म पत्नी की. I wanted to ask you this, that with what I know, the planning of a vacation and organizing starts from Anushka and ends at Anushka. Yes. और ये भी कहा गया हमें सूत्रों ने कि उसका एक इनपुट आता है कि वहां पर जिम होना चाहिए. हाँ. So my question to you is that a
Can you hear me now? I lost that. I think I I lost. lost you for a bit. Yeah, I lost lost you you. for a bit. हाँ हाँ आप बोलो. Okay. हाँ. कि जब ये what was the initial conversation like? Because now you both know each other. But the first time when you were planning your vacation, how was the conversation like? यार देखो प्लानिंग की जहां तक बात है जिसको ज्यादा समझ जिसको ज्यादा आइडिया हो वही प्लानिंग करेगा ना. हमारा क्या हमें तो यहाँ से अब कुछ समझ भी तो आनी चाहिए कि चीजें माहौल कैसा होगा, क्या कौन सी जगह अच्छी है घूमने की, क्या खाने हैं जो अलग भी खा सकते हैं. हमें तो वही चीज रोज भी खिलाते रहो, कुछ अकल ही नहीं है कि कुछ और भी ट्राई करना है, कुछ और करना है. तो जिसको ज्यादा समझ होती है जिस चीज की उसको वही करना चाहिए. हर चीज में एक्सपर्ट नहीं बनना चाहिए. ये वो एक बात ये भी ट्रू है. सबको समझ आनी चाहिए. तो शी इज मच बेटर एट figuring out places that we both will like, and yeah, she's absolutely precise. उसको सब पता है अनुष्का को कि हम दोनों को सिमिलर चीजें पसंद, में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. You know? So she obviously has a much better idea of places, of cultures, of understanding of food. ये वो so obviously she is the one who takes responsibility of that.